Hello students, now we are going to start our new chapter, chapter 6, marketing, है ना. So first let me explain you what is marketing. Marketing, it means the process by which the goods are going from producer to customer. जब कोई चीज़, goods and services we can say, प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक पहुंचती है, उसके बीच में होने वाली हर एक्टिविटी मार्केटिंग के अंडर में आती है. ओके, सो marketing management is that branch of general management which is related to planning, organizing, direction and control of marketing activities, है ना. तो what is mean by marketing activities? Marketing activities, it means planning, organizing, directing and controlling the marketing activities. ये सारी activities marketing से related जो भी activities है, जब उसका मैनेजमेंट किया जाता है तो इट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट. ओके, सो देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस आर गिवन हियर, बट वी विल गो थ्रू ओनली द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. नंबर 1, द अप्रोच टू मार्केटिंग फ्रॉम मैनेजरियल साइड इज रेफर टू एज मार्केटिंग मैनेजमेंट. मतलब जो भी चीज़ें मैनेजमेंट के थ्रू होती हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंडर में आती हैं. Then number 2, marketing management is the marketing concept in action. It means the action related to the marketing, whatever the that type of particular action which is related to the marketing activities and it is done by the management, it is called marketing management. जो भी चीज़ें मार्केटिंग से रिलेटेड मैनेजमेंट के थ्रू होती है उसे मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है. Then Number 3, as a branch of the broad area of management, marketing management is concerned with the direction of purposeful activities towards the attainment of marketing goals. It means whatever goals the organization have related to the marketing, it is done by the marketing management. वो सारे काम marketing management के थ्रू किए जाते हैं. Then number 7, marketing management can be defined as the process of ascertaining consumer needs. It means we have to search the consumer needs under the marketing, converting them into products. Whatever the needs of the customer, we have to convert them into the product or services and then moving the product or services to the final consumer. It means first we have to analyze the needs of the customer, then we have to convert that needs into the product and finally we have to move that product towards the customer. उनकी इच्छाओं को जानना, कस्टमर की जो भी डिमांड है, जो भी नीड है, उनको समझना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना और फिर उस प्रोडक्ट को फाइनली कस्टमर तक पहुंचाना. इट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट. ओके, so there are characteristics are given here. So characteristics of marketing management. Number 1, it is a process. Marketing management is a process because it involves analysis, planning, implementation and control of programs. It's a process, है ना. Like we can say management is a process in which they have to do the planning, organizing, controlling and directing of the product. Same here in the marketing management we can say it is a process. Marketing management is a process because they are go through the planning, directing, analysis and implementation, etc., etc. Programs designed to bring about desired exchanges with target audiences for the purpose of personal or mutual gain. It means we have to give our product to the target audiences. जिस ऑडियंस को हमारे प्रोडक्ट की नीड है उनको वहां तक पहुंचाना. एंड द पर्पस इज म्यूचुअल गेन. इट मीन्स पर्पस क्या है? इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें दोनों का इंटरेस्ट होता है, सोसाइटी का एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का. सोसाइटी गेट्स अ गुड प्रोडक्ट एंड वी विल गेट द प्रॉफिट फ्रॉम द कस्टमर. हमें सोसाइटी से एक तरह से क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है और कस्टमर को उसके बदले में क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है. ओके, देन नंबर 2 इज it focuses upon psychological and physical factors of marketing. It means it is related to the psychological as well as the physical factors of marketing. Like psychological factors क्या होते हैं इसके? This discovers needs and wants of customer. Psychological, we can discover the needs and wants of the customer. हम एनालिसिस करते हैं, एक तरह से हम
कस्टमर्स से हम मतलब कम्युनिकेशन करते हैं, उनकी जो भी वांट्स हैं, उनकी जो भी डिज़ायर है, जो भी नीड्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, सर्च आउट करते हैं एंड कीप द एंटरप्राइज इन कंटिन्यूस टच विथ एवरी चेंज इन हैबिट्स, टेस्ट एंड फैशन एक्सेट्रा। इट मीन्स whatever is in demand, क्या चल रहा है डिमांड में, sometimes people needs, society needs some changes in the product, they have changes their test habits, their using habits है ना, उनकी जो habits है, टेस्ट है, उनका जो भी फैशन है वो चेंज होता रहता है and we have to give the knowledge about the changing taste and habits of the customer टू द ऑर्गेनाइजेशन। हम एक तरह से एनालिसिस करते हैं बाय द मार्केटिंग मैनेजमेंट कि कस्टमर की टेस्ट में क्या चेंज हुआ है, उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या डिज़ायर है, उनकी हैबिट्स किस तरह से चेंज हुई है, उस तरीके से हम एनालिसिस करके ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको प्रोवाइड करते हैं, बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट। तो जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस को हम कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट में भी उनको इम्प्लीमेंट करते हैं कि इफ देयर इज अ चेंज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, इफ देयर इज अ चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कस्टमर, इफ देयर इज अ चेंज इन द हैबिट्स ऑफ द कस्टमर नीड्स, तो उन सारी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन है हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमारे प्रोडक्ट में हम उसको क्या कर सकें, उसमें बदलाव ला सकें। द नंबर 2 इज फिजिकल फैक्टर। It aspects of marketing convert the needs and wants of consumer into goods and services. I will again explain you that thing. There are two factors, psychological and physical factor. In psychological factor, we are going through the changing taste and habits of the customer. हम उसमें एनालिसिस करते हैं कि कस्टमर की क्या चेंजेस हुई है डिमांड में, टेस्ट में या उनकी हैबिट्स में, वो हो गया साइकोलॉजिकल फैक्टर। एंड इन सेकंड फैक्टर मतलब फिजिकल फैक्टर, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस चेंजेस इन द प्रोडक्ट। मतलब ऑलरेडी हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, है ना, मतलब फिजिकली। फिजिकल फैक्टर मतलब कि जो हमने एनालिसिस की है कस्टमर की डिमांड में, कस्टमर की टेस्ट में, हैबिट्स में, उन सारी चेंजेबल थिंग्स को कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है हमें, हमारे प्रोडक्ट में। इट मीन्स वी आर गोइंग टू चेंज दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन फिजिकली, मतलब फिजिकली हम वो सारी चीज़ें क्या करने जाते हैं, चेंज करने जाते हैं इन द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट में कंज्यूमर की जो भी डिज़ायर है, जो भी नीड्स है, उसको जो भी चेंजेस चाहिए वो फिजिकल फैक्टर में जाकर हम उस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। सो साइकोलॉजी फैक्टर में हम एनालिसिस करते हैं कस्टमर की क्या डिमांड है, और फिजिकल फैक्टर में हम उनकी जो भी चेंजिंग डिमांड है उसको उस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, फिजिकली उसमें चेंजेस लाते हैं। ओके, देन नंबर थर्ड इज it is the application of the principles of management in the field of marketing. There are so many principles of management, है ना, बहुत सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं एंड वी हैव टू अप्लाई दोज प्रिंसिपल इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट। इट मीन्स वी कैन से इट इज सिमिलर। हम जब फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेम थिंग इज हियर। इट मीन्स जो भी हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ते हैं या पढ़ेंगे वही सारी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होती हैं, अप्लाई होती है ना, बिकॉज दिस इज द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें कई अलग अलग तरह की ब्रांचेस हैं, जिसमें एक ब्रांच है हमारी कौन सी, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी वी हैव टू फॉलो ऑल द प्रिंसिपल्स वॉट एवर वी आर गोइंग टू फॉलो इन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में जो सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं वही सारी चीज़ें हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। In marketing management, first of all the habits, tastes, needs and wants of customers are discovered. Same thing, firstly we have to analyze all the things, tastes and habits and demand of the consumer. Then the goods and services are produced according to these specifications, मतलब जो भी डिमांड्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया जाता है। इट मीन्स वी आर गोइंग टू कन्वर्ट ऑल द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर इनटू द प्रोडक्ट। कस्टमर की जो भी डिमांड है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। देन इन मार्केटिंग प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड इन विच इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकिंग रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड ब्रांड पैकेजिंग। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एनालिसिस किया कि कस्टमर की क्या डिमांड है।
सेकेंड स्टेप में हमने उस प्रोडक्ट को बनाया अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हमने उस प्रोडक्ट को बनाया। थर्ड स्टेप में वी हैव टू टेक डिसीजन अबाउट द पैकेजिंग लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, लेबलिंग क्या होनी चाहिए। इन फोर्थ स्टेप वी आर गोइंग थ्रू द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द मार्केट। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू थिंक अबाउट द सेल सर्विस। उसके बाद जो स्टेप आता है उसमें आता है आफ्टर सेल सर्विस, है ना। जैसे हम जब भी वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या हम कोई भी ऐसा मशीनरी लेते हैं तो उसके लिए आपको जैसे 1 ईयर 2 ईयर्स या 5 ईयर्स की वारंटी गारंटी आती है, जिसमें आपको आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है कि अगर 1 साल के अंदर आपके प्रोडक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो लोग आकर उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। इट इज़ कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विस, है ना। तो कई तरह की सर्विसेज आजकल जो है शॉपकीपर्स हमें देते हैं कि सामान लाने के बाद में उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसको क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया है, एनालिसिस करना कस्टमर की डिमांड को, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, उसके बाद में उसकी लेबलिंग पैकेजिंग करना, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कस्टमर तक वो कैसे पहुंचेगा, कौन से कस्टमर तक हमें वो पहुंचाना है, एंड देयर आफ्टर आफ्टर सेल सर्विस, कि आफ्टर सेल सर्विस हम अपने कस्टमर को क्या क्या देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है किस में आती हैं, आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट में। मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ ब्रांच, देयर इज अ सेपरेट ब्रांच विच इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। और मार्केटिंग मैनेजमेंट के ये सारे क्या होते हैं, वर्क होते हैं, जिसमें एनालिसिस करना होता है, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना होता है, पैकेजिंग लेबलिंग के बारे में डिसीजन मेकिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स को डिसाइड किया जाता है, और उसके बाद में आफ्टर सेल सर्विस में हमें अपने कस्टमर को क्या क्या प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें उसमें डिसाइड की जाती हैं। ओके, देन वी कैन से एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिसीजंस द एक्ट्स ऑफ प्लानिंग, इसी तरह से प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म, ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। देन नंबर 4 इज इट इज़ ए पर्पजिव एक्टिविटी, इट मीन्स देर इज सम पर्पज। किसी भी मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो भी एक्ट किए जाते हैं देयर इज सम पर्पज बिहाइंड इट, है ना, कुछ ना कुछ उसका पर्पज होता है। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ए पर्पजिव एक्टिविटी, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि हवा में करना है, इट्स नॉट अ हवा में, इट्स अ पर्पजिव एक्टिविटी। इट मीन्स देयर इज अ सम बेस, हर काम करने के नीचे एक कोई ना कोई उसका बेस होता है, कोई पर्पज होता है, कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्ट होता है। द एक्सचेंज इंक्लूड्स बोथ मटेरियल गुड सर्विसेज एंड ऑल्सो साइकोलॉजिकल एक्सचेंजेस, है ना। इट मीन्स मार्केटिंग मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स एज वेल एज services as well as psychological exchanges regarding organizations, persons, places and ideas, है ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट सिर्फ गुड्स के लिए नहीं होती है, ना ही सिर्फ सर्विस के लिए होती है, बल्कि ये साइकोलॉजिकल भी होती है, वेयर वी आर गोइंग टू एक्सचेंज द आइडियाज एंड ओपिनियंस विद अदर्स। उसमें हम अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस भी क्या करते हैं, दूसरों के साथ में एक्सचेंज करते हैं। देन नंबर 5 इज प्रैक्टिस्ड नेचर। Marketing management can be practiced by either the seller or the buyer, whoever seeks to stimulate the exchange process, है ना। It's a we can say practice nature, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सेल किया और हमने उसको छोड़ दिया, या बायर ने एक बार किसी चीज़ को खरीदा और फिर उसको छोड़ दिया, नहीं। इट इज़ अ प्रैक्टिस, मतलब ये हमेशा आगे से आगे क्या होती रहती है, चलती रहती है। Then next characteristics number 6, it stresses the coordination of factors. It means marketing management जो होता है अलग अलग factors को क्या करता है, coordinate करता है। Like 4 factors are here: product, price, promotion and place. So there are 4 factors जिसमें होता है प्रोडक्ट की प्राइस, प्रमोशन इट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स, एंड प्लेस। प्रमोशन में हम एडवर्टाइजमेंट को भी ले सकते हैं, ओके, पब्लिसिटी को भी ले सकते हैं, एंड प्लेस टू एक्टिव इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इट मीन्स हमें ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पर हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसका हमें एक्टिव रिस्पॉन्स मिल सके। Okay, thus marketing management is the study of the activities involved from finding the needs of the customer and providing satisfaction to them. So it means marketing management is doing the work between the
नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर, कि पहले उसकी नीड को पहचानना और फिर कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना. देन नंबर 7 इज मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ सोशल फंक्शन. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, है ना, वो किससे रिलेटेड है, सोसाइटी से है. हम किससे बात कर रहे हैं, लोगों से. सो इट इज अ सोशल फंक्शन and because it having a mutual contact must be to all classes of society. It means there should be a mutual contact with all types of society. ऐसा नहीं है हम किसी एक ही पर्सन के बारे में सोच रहे हैं. We are thinking about all types of society. Okay. Then so that marketing manager can make policy according to consumer of product or trend of consumer. It means we have to plan our marketing strategy as per the need of the customer. कस्टमर की जो नीड है, जो ट्रेंड है, जो फैशन चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं. देन नंबर 8 इज इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट, है ना. मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट मैंने अभी आपको बताया कि देयर आर वाइडर स्कोप इन द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट हैज़ अ वाइडर स्कोप, वाइडर थिंग है ये, और उसकी एक ब्रांच है मार्केटिंग मैनेजमेंट. इट मीन्स वी कैन से इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, those who are doing the work of different type of management, जो अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं. उसी की एक ब्रांच है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो is a branch of overall management because in this studies of need of customer. मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम कस्टमर की नीड्स को स्टडी करते हैं. एनालिसिस ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम्स. इट मीन्स वी हैव टू एनालिसिस द मार्केटिंग प्रोग्राम्स कि हम कौन से ऐसे मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाएं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल हो, इफेक्टिवनेस हो जिसमें. फॉर सेटिस्फाई देम एंड डन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल. मतलब हम उसको प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं. देयर आर 3 लेवल्स. प्लानिंग, जहाँ पर हम पेपर वर्क करते हैं, प्लान बनाते हैं. नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. एंड नंबर 3 इज कंट्रोल. इट मीन्स वेयर वी आर कंट्रोल आवर प्लान एंड पॉलिसी, जहाँ पर हम अपने प्लान्स को क्या करते हैं, हमारे एग्जीक्यूशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. ओके. Then number 9 is whole business philosophy. It means for doing marketing management we have to follow the business philosophy. Like marketing management is a central dimension of whole business. It means बिजनेस इज रन अराउंड द मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना. जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में एनालिसिस भी हो रही है और प्रोडक्ट को भी बनाया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग भी हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स डिसाइड किए जा रहे हैं, और प्लस आफ्टर सेल सर्विस, है ना. इट मीन सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में. सो Peter F. Drucker said that it spreads in all sectors of enterprise and it's seen as whole business philosophy. मतलब हम कह सकते हैं कि ये सभी तरह के जो सेक्टर्स हैं, एंटरप्राइजेस जो हैं, उसमें सभी तरह से एक तरह से स्प्रेड हो चुका है ये. और ओवरऑल जो है सारा मैनेजमेंट जो है या ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ मार्केटिंग मैनेजमेंट के आसपास ही घूमती है. ओके. देन नंबर 10 इज इट इज ऑपरेटिव एंड अरेंज्ड सिस्टम, है ना. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ ऑपरेटिव सिस्टम. ऑपरेटिव मतलब इस पे एक्चुअल में वर्क होता है. एंड अरेंज सिस्टम, इट मीन्स इट इज गो थ्रू अ सिस्टमेटिक मैनर. ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी काम हो रहा है. दे आर फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डूइंग द मार्केटिंग मैनेजमेंट. इट मीन्स दे आर फॉलोइंग सम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बिकॉज इन इट्स मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च, इसमें मार्केट रिसर्च किया जाता है, कंज्यूमर रिसर्च होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेल्स प्रमोशन होता है एंड सेल्स कंट्रोल आर इंक्लूडेड. ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं. सो दे हैव टू रन थ्रू द सिस्टमेटिक मैनर, मतलब इनको एक अरेंज सिस्टम को फॉलो करना होता है. देन नंबर 11 इज कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, है ना. कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इट मीन्स दे आर गिविंग द वेटेज टू द कंज्यूमर नीड्स, है ना. ये कंज्यूमर को ध्यान में रख के किया जाता है. इट मीन्स मार्केटिंग मैनेजमेंट इज गोइंग थ्रू द कंज्यूमर नीड्स एंड डिमांड्स एंड फॉर देयर सेटिस्फैक्शन. मतलब कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर ओरिएंटेड है, जहाँ पर दे आर गिविंग दे वांट्स टू गिव अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ऐसा नहीं है कि दे आर थिंक ओनली फॉर द प्रॉफिट मेकिंग, सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं सोचा जाता है, बल्कि दे आर गिविंग वेटेज टू द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंज्यूमर को क्या करना चाहते हैं, सेटिस्फाइड करना चाहते हैं बाय गिविंग गुड प्रोडक्ट इन अ लेसर कॉस्ट, है ना.
कि कम से कम पैसे में हम अपने कस्टमर को क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके। ये मेन एम होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। सो इट इज कॉल्ड अ कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोग्राम। एक तरह से ये कंज्यूमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। देन नंबर 12 इज साइंस एंड आर्ट। इट मीन्स दे आर गोइंग टू फॉलो all the principles of or all the rules of science and art, because science and art is a personal ability are included in this। मतलब साइंस को भी फॉलो कर रहे हैं, आर्ट को भी फॉलो कर रहे हैं, एज वेल एज दे आर इंक्लूडिंग द पर्सनल एबिलिटी। अपनी पर्सनल एबिलिटी को वो इंक्लूड करके और साइंस एंड आर्ट को भी इंक्लूड करके वो मार्केटिंग मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। देन नंबर 13 इज स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन, है ना। दे आर फॉलोइंग सम स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन लाइक at present business environment change because economic, cultural, social and political matter are changed. As we know, there are so many changes are taken place in every and each moment, चाहे वो political हो, चाहे वो social हो, cultural हो या economic हो, so that their organization of business have to change according to new ideas, new means and new markets. It means marketing management has to follow the new ideas, new means and new markets, है ना। मतलब वो rigid होके नहीं रह सकते, they cannot follow the same thing always. It means they have to make some changes for doing the marketing management, okay. Then number 14 is it is differ from sales management, है ना। Listen, sales management is a different thing and marketing management is a different thing. Why and how? Number 1, marketing management is based on originally marketing thought, but sales management is based on originally selling thought, है ना। It means in marketing management we are going through the market, है ना। मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में सोचा जाता है, या कस्टमर की क्या डिमांड है, या हम कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, we have to think about that. बट इन सेल्स मैनेजमेंट दे आर गिविंग वेटेज टू सेल। वो सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं कि किस तरह से हम अपने सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। इट मीन्स दे आर गोइंग थ्रू द सेल्स मैनेजमेंट ओनली फॉर इंक्रीजिंग द सेल। इट मीन्स दे आर फॉलोइंग द सेलिंग थॉट कि किस तरह से हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। बट इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट दे आर गिविंग वेटेज टू द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पर होता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर। देन नंबर 2 इज marketing management has separate existence but sales management works in as a marketing department. It means we can say sales management is a branch of a marketing management. Marketing management is a separate thing, okay, but sales management is including in a marketing management. मतलब sales management जो है वो एक तरह से marketing management का ही क्या है, पार्ट होता है। Then number 3, marketing management is a selling oriented but sales management is a custom oriented, है ना। कस्टमर ओरिएंटेड, देखिए ये उल्टा दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ कस्टमर ओरिएंटेड, दिस इज नॉट अ कस्टम, इट इज अ कस्टमर, एंड सेल्स मैनेजमेंट इज अ सेल्स ओरिएंटेड, है ना। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है, मैं इसको आपको एरो करके दे रही हूँ यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द कस्टमर, है ना, कि वो हमेशा मार्केटिंग जो भी होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो होता है वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, जिसमें कस्टमर को ध्यान में रखा जाता है। और सेलिंग ओरिएंटेशन और ये जो अपना सेल्स मैनेजमेंट जो होता है वो सेलिंग ओरिएंटेड होता है, जहाँ पर वो सिर्फ सेल को किस तरह से बढ़ाया जाए इसी पर वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने एरो कर दिया है। देन नंबर 4 इज इन मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन बट इन सेल्स मैनेजमेंट स्ट्रेट ऑन सेलिंग एंड प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था इन मार्केटिंग मैनेजमेंट दे आर गोइंग टू फोकस ऑन द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। मतलब उनका पूरा फोकस ये होता है कि अपने कस्टमर को हम किस तरह से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। बट इन सेल्स मैनेजमेंट उनका ध्यान होता है कि किस तरह से हम अपने सेल को बढ़ाएं और किस तरह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। देन नंबर 5 इज ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर्स इंस्पेक्ट एंड कंट्रोल। इसका मतलब ये कौन टेक ओवर करता है, मैनेजर्स और प्रेसिडेंट। बट ऑन सेल्स मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजर हैव इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल। बट सेल्स मैनेजमेंट जो है उसको कौन करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो भी मैनेजर होता है वो उसको इंस्पेक्ट करता है, मतलब चेकआउट करता है और कंट्रोल करता है। मतलब
मार्केटिंग मैनेजमेंट को कौन चेकआउट करता है या कौन कंट्रोल करता है? जो प्रेसिडेंट होता है या जो मैनेजर होते हैं वो। और सेल्स मैनेजमेंट को कौन कंट्रोल करता है? मार्केटिंग मैनेजर। ओके, चलिए देन 15th द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, it is universal function. Universal function it means it is applicable in whole world, है ना, ये सारी दुनिया में इसको अप्लाई किया जाता है। Marketing management is a universal function because it uses in all type of business, because we can apply it in all type of business, either business is operating in view profit or without profit, है ना, मतलब चाहे वो profit वाला business हो, it means if it may be profit organization or it may be non-profit organization. There are two types of organization, आपको पता ही है। एक वो organization होती है जिसका एम होता है profit making, and non profit organization होती है like आप देखिए जो charitable trust होते हैं, hospitals होते हैं, they are calling non उनको बुलाया जाता है कि non profit organization. They are doing work only for the charitable purpose, they are not making any type of profit, है ना, वो कोई profit कमाने के लिए काम नहीं करते हैं। But we can say marketing management is applicable in all types of business, in all types of organization. सभी जगह पर हमें marketing management को apply करना पड़ता है, so it is called a universal function. Okay, so these are the characteristics of marketing management, and in next lecture we will discuss about the functions of marketing management. Thank you.